Today's topic is understanding differences based on a range of cognitive abilities. आपके हर इंडिविजुअल लाइक इज डिफरेंट है, तो सबका इंटेलेक्चुअल लेवल भी डिफरेंट है. कोई बहुत इंटेलिजेंट है, जीनियस है, कोई बिल्कुल बिलो लेवल का है, कैन से मेंटली रिटार्डेड है, कोई एवरेज है, कोई स्लो लर्नर है. सो इट्स द डिफरेंस बिटवीन ईच एंड एवरी इंडिविजुअल. So many learning difficulties are there. कई बार ऐसा होता है कि कंसेप्ट नॉर्मल होता है लेकिन आपके अंदर ही कुछ लर्निंग डिफिकल्टीज होती हैं. तो देर इज अ डिफरेंसेस बिटवीन इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल. आज हम करेंगे इसके बारे में. लर्निंग डिफिकल्टीज, स्लो लर्नर्स, dyslexics, intellectual deficiency, intellectual giftedness, and then implications for catering to individual variations in view of difference rather than deficit perspective. आगे चलते हैं. So, as we have seen while discussing about the individual differences among the children differ widely from each other in relation to a number of psychological attributes, including their cognitive abilities and capacities. Many of them can think and reason, analyze and synthesize, discriminate and generalize better than the others of their same age and grade. अब देखिए सबके माइंड लेवल जो है वो डिफरेंट है. कुछ लोग बहुत क्विक होते हैं, फास्ट होते हैं, बहुत जल्दी वो एनालाइज कर लेते हैं, रीजनिंग उनकी बहुत स्ट्रांग होती है, बहुत जल्दी वो क्रिएट भी कर लेते हैं. तो उनका अपना ही माइंड सेटअप दूसरे जो नॉर्मल उनके एज ग्रुप के लोग होते हैं उनसे डिफरेंट होता है. तो देर इज डिफरेंस, तो उसी के बारे में हम करेंगे. So some are quick in grasping and understanding the things taught to them in the class, while often may be found to be struggling for keeping the pace with other students of the class. वही ना, कुछ बच्चे बहुत क्विक होते हैं, जल्दी अंडरस्टैंड करते हैं, कईयों को बहुत टाइम लगता है वो अपनी क्लास के लेवल पे एडजस्ट करने में. they take time. In case we try to evaluate or assess the children of school population on some measure of cognitive competencies or cognitive abilities, we may find that the score earned by them most probably will fall on a normal curve. तो जनरली नॉर्मल कर्व बनता है, वी विल डिस्कस है कि ज्यादातर जो स्टूडेंट्स या इंडिविजुअल्स या बच्चे जो हैं वो नॉर्मल लेवल पे होते हैं. वी कैन से एन एवरेज लेवल. बहुत कम बच्चे हैं जो बहुत फास्ट है, शार्प है, उनकी कॉग्निटिव एबिलिटी बहुत शार्प है, और बहुत कम बच्चे हैं जिनकी कॉग्निटिव एबिलिटी बहुत लो है. Many of them will be adjusted as normal or average in relation to the possession of these cognitive competencies and abilities. However, some of them will be deviating much or too much from their average peers. वही है, difference is there. So coming here, learner with learning difficulties. What is the basic meaning and definition? तो learner जो है, जब हम कह सकते हैं जिन लोगों को, जिन स्टूडेंट्स को लर्निंग डिफिकल्टीज है, बेसिकली क्या है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दैट? So children suffering from serious learning difficulties or disabilities are labeled as learning disabled children. Learning difficulties or disability is nothing but a sort of handicap or helplessness that can be felt by the sufferer in terms of his or her academic performance, in the same way as experienced by a mentally disabled in terms of his mental functioning, or by a physical handicap or disabled in terms of his physical function. तो बेसिकली हम क्या कहेंगे कि जो लर्निंग डिफिकल्टी है वो एक तरह से बच्चा जो है वो बिल्कुल हैंडीकैप्ड है, हेल्पलेस है. ही इज नॉट एबल टू अंडरस्टैंड, ही इज नॉट एबल टू ग्रास्प व्हाट एल्स इज टीचिंग इन द क्लास. उसकी जो एकेडमिक परफॉर्मेंस है वो भी बहुत लो है, मेंटली वो क्या है, डिस्टर्ब. तो कमिंग, एक आपकी डेफिनेशन है, दैट इज ऐसे किर्क. It's very important definition you must mention while mentioning this learning difficulty. The term learning difficulties or disability is not meant to be used for children with minor or temporary difficulties in learning, but with this discrepancy between ability and achievement in educational performance, and such severe discrepancy described as learning disabilities with significant learning problems that cannot be explained by mental retardation, that sensory impairment, emotional disturbance, or lack of opportunity to learn. देखिए,
तो ऐसे केस में कहा है कि लर्निंग जो डिसेबिलिटी या लर्निंग जो डिफिकल्टी है वो इस तरह से है कि बच्चे के अंदर एबिलिटी है, लेकिन वो अपना उस लेवल की एबिलिटीज के अकॉर्डिंगली अचीव नहीं कर पाता। इट मीन समथिंग इज मिसिंग देयर। कुछ लर्निंग डिफिकल्टी है कि एबिलिटी होते हुए भी वो अचीवमेंट नहीं कर पाता। So here are some of the nature and characteristics of the children with learning difficulties. So learning disabled children essentially suffer from serious learning problem or disorder for a number of reasons. Their problems and disorders are usually manifested by significant difficulties in the acquisition and use of language, listening, speaking, reading, writing, etc. Reasoning or mathematical ability or social skills. तो बेसिकली आपने देखेंगे कि जो लर्निंग डिफिकल्टी होगी जिनमें ज्यादा लेवल पर है उनमें लैंग्वेज की प्रॉब्लम होगी, सुनने में, लिखने में, राइटिंग में भी, रीडिंग में भी, और थोड़ा मैथमेटिकली, रीजनिंग में, सोशल स्किल्स भी उनमें कम होगी. सो some of the more characteristics are there. Just hold on. Learning difficulties or disabilities. It can be genetic. हो सकता है कि जो बच्चे में लर्निंग डिसेबिलिटी उसकी जीन्स में है, उसकी जो पेरेंट्स या फोर फादर्स उनमें लर्निंग डिसेबिलिटी वाले जीन्स थे तो वही आगे वो बच्चे में ट्रांसफर हुए हैं. और ऑर्गेनिक और फिजियोलॉजिकल फैक्टर्स हैं. आपके अंदर आप क्या खा रहे हैं, ठीक है ना, आपके अंदर क्या आप ले रहे हैं उसके अकॉर्डिंग भी हो सकता है. देन एनवायरमेंटल फैक्टर्स, कैसे एनवायरमेंट में है उसके अकॉर्डिंग भी आपकी लर्निंग डिसेबिलिटी हो सकती है. सो देयर डिसऑर्डर्स जो हैं वो इंट्रिंसिक फैक्टर्स भी हो सकते हैं, अंदर जो है आपके अंदर इंडिविजुअल के अंदर है, लाइक सेंट्रल नर्वस सिस्टम की डिसफंक्शनिंग हो जाना, ठीक है, एंड डेफिसिट हो जाना, इंफॉर्मेशन, आपकी जो ब्रेन का इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग मॉडल है उसमें प्रॉब्लम क्रिएट हो जाना, कि आपने कोई भी इंफॉर्मेशन दी आपके ब्रेन तक गई लेकिन वो प्रोसेस हुई लेकिन वो आपके ब्रेन में उसका रिजल्ट नहीं आया, लाइक ब्रेन के अंदर इंफॉर्मेशन गई लेकिन प्रोसेसिंग में प्रॉब्लम हुई, आप उसे प्रोसेस नहीं कर पाए तो आप रिस्पॉन्स नहीं दे पाए, तो वो प्रॉब्लम हो सकती है. ठीक है, एक्सट्रिंसिक फैक्टर हो सकते हैं, लाइक कोई सेंसरी इंपेयरमेंट होगी, कोई इमोशनल डिस्टर्बेंस हो गई, कोई कल्चरल डिफरेंस है, या लैक ऑफ एजुकेशनल अपॉर्चुनिटीज है, पॉवर्टी है, इस कारण भी हो सकती है. Then you can say inability to grasp or understand the things. कुछ cognitive problems ऐसे भी हो सकती है कि आप grasp नहीं कर पा रहे. लैंग्वेज रिलेटेड एरियाज होते हैं जैसे कि कम्युनिकेशन नहीं कर पा रहे हैं, राइटिंग लैंग्वेज नहीं हो पा रही, तो इस तरह से भी चीजें हो सकती हैं. कई बार माइनर और टेम्परेरी डिफिकल्टीज होती हैं और समटाइम्स ये माइनर या टेम्परेरी डिफिकल्टीज सिवियर भी बन जाती हैं. तो लर्निंग डिसेबिलिटीज जो है वो एक तरह से हम देखेंगे कि एक नॉर्मल रेंज में चलती है. जिनमें लर्निंग डिसेबिलिटी होती है उनकी एकेडमिक अचीवमेंट जो वो डिले होता है, ठीक है, वो नॉर्मल जो एजुकेशनल प्रोसेस होता है जिस एज ग्रुप में वो चल रहा था उससे वो पीछे होता है. एंड इम्पेयर्ड लर्निंग इनएफिशिएंसी जो है उस कारण क्या होता है कि बच्चे का जो पोटेंशियल है, जो एजुकेशन अचीवमेंट है वो नहीं कर पाता, तो उन बच्चों को स्पेशल केयर, अटेंशन और एजुकेशन सर्विस चाहिए थी जिसमें वो एडजस्ट कर सके, वेलफेयर कर सके. कि हाँ, बच्चे जो होते हैं वो बहुत ही हाइपर एक्टिव होते हैं, ठीक है, इम्पल्सिव भी होते हैं, या उनमें इमोशनल प्रॉब्लम्स होती हैं, लाइक एंजाइटी है, मूडीनेस है, उनके मूड ऊपर नीचे जा रहे हैं, ठीक है, उनका बिहेवियर भी वैसे ही रिफ्लेक्ट होता है. तो कई बार हम ये भी देखते हैं कि उनकी जो फिजिकल अपीयरेंस है उनसे हमें नहीं पता चलता दैट उनकी जो फिजिकल अपीयरेंस वो नॉर्मल बच्चों की तरह होती है, लेकिन उनका जो आईक्यू स्कोर्स है, आईक्यू जब हम उनका टेस्ट करते हैं तो उससे पता चलता है उनका जो आईक्यू वो काफी लो है. ठीक है, तो देखते हैं हम ज्यादातर कि उनकी जो बॉडी है बिल्कुल रॉबस्ट बॉडी टाइप, लाइक रॉबर्ट की तरह होती है, और उनके मतलब यू कैन से जो उनकी चाल होती है, जो जैसे वो चलते हैं तो उनसे भी थोड़ा सा आइडिया हो जाता है कि सम प्रॉब्लम इज देयर. एंड जनरली हम ये भी देखते हैं कि लर्निंग डिफिकल्टी अगर है किसी बच्चे में बहुत माइनर लेवल पे है तो उनका जो आईक्यू लेवल भी नॉर्मल होगा, जरूरी नहीं कि बहुत लो हो, नॉर्मल भी, उसके नॉर्मल इंटेलिजेंस भी होगी, विजन भी ठीक होगा, बट सम डिसेबिलिटी इज देयर, तो इसको हम लर्निंग इनएफिशिएंसी भी कहते हैं. ठीक है, देयर इज अ गैप बिटवीन लर्निंग पोटेंशियल एंड एजुकेशनल अचीवमेंट.
कुछ न्यूरोलॉजिकल साइंस भी देखने को मिलते हैं, लाइक अगर हम उनके टेस्ट वगैरह किए जाएं, ईएफजी वगैरह करवाई जाए तो उससे उन इरेगुलरिटीज नजर आती हैं। तो डिसऑर्डर जो है वो होता है ज्यादातर मेमोरी में, थिंकिंग में, अटेंशन, जनरल कोऑर्डिनेशन में, परसेप्शन में, मोटर फंक्शनिंग में। तो बेसिकली इन चीजों में हम देखते हैं कि डिसऑर्डर पाया जाता है। तो डिसऑर्डर होने के कारण थोड़ी सी लर्निंग डिसेबिलिटी होती है, जिसके कारण उनके अंदर थोड़ा सा लैक ऑफ मोटिवेशन है, इनअटेंशन है, इनएबिलिटी टू जनरलाइज है, लैक ऑफ एडिक्वेट एबिलिटी इन प्रॉब्लम सॉल्विंग, इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग और थिंकिंग। तो हमें उन बच्चों को बहुत स्पेशल अटेंशन देनी पड़ती है, काफी रेमेडियल प्रोग्राम्स देने पड़ते हैं, ताकि उनकी जो लर्निंग प्रॉब्लम्स हैं, लर्निंग डिसेबिलिटीज हैं, वो दूर कर सकें। बाकी जो जेनेटिक कॉजेज हैं तो वो ज्यादातर देखे गए हैं कि काफी इंडिविजुअल्स में, काफी बच्चों में जेनेटिक भी है, कि अगर पेरेंट्स में लर्निंग डिसेबिलिटी है तो वो बाय जीन्स आपके जो ऑफस्प्रिंग्स हैं उनके बच्चों में भी पाई जाती है। बाकी ऑर्गेनिक और फिजियोलॉजिकल फैक्टर्स में ये आ जाता है कि लाइक ब्रेन डैमेज हो गया, एक्सीडेंट हो गया, या लैक ऑफ ऑक्सीजन है जब भी बर्थ हो रहा है, तो ये न्यूरोलॉजिकल डिफिकल्टीज हो जाती हैं। उनके इंजरी हो गई है स्पाइनल कॉर्ड में, ठीक है, या फिर कोई नर्व्स में इंजरी होगी जो मैसेज कैरी करती हैं, तो उस पर भी माल फंक्शनिंग आ जाती है। सेंट्रल नर्वस सिस्टम में भी बायोकेमिकल इम्बैलेंस हो गया है, तो उस कारण भी लाइक उनको कलर्स का नहीं पता चलेगा, फ्लेवर्स का नहीं पता चलेगा, बच्चे बहुत हाइपर एक्टिव होंगे, इम्पल्सिव होंगे, इमोशनली इम्बैलेंस होंगे। विटामिन की डेफिशिएंसी आ गई है तो वो भी बच्चों के ब्लड स्ट्रीम में देखते हैं कि विटामिन की कमी है, तो वो भी सेंट्रल नर्वस सिस्टम को इफेक्ट। Then comes that environmental factors. Environmental factor में अगर poor nourishment है, proper खाना नहीं मिल रहा है, environment अच्छा नहीं दिया जा रहा, जब बच्चा मदर की womb में है तब भी काफी प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। प्री मेच्योर डिलीवरी हो गई है, अनकंजीनियल इन्वायरमेंट है, इम्प्रॉपर इन्वायरमेंट दिया जा रहा है, और स्ट्रेस है मदर पर, तो दैट आल्सो कॉजेस दिस थिंग। डाइट डेफिशिएंसी है, कोई डिजीज है, कोई एक्सीडेंट है, कोई इंजरी है, कोई प्रॉपर मेडिकल केयर नहीं हो रही है, या फिर है कह सकते हैं कि समथिंग मदर इज सफरिंग, तो दैट आल्सो अफेक्ट्स द बेबी इन द वूम। तो नेक्स्ट इज दैट डिफेक्टिव एजुकेशनल सेटअप है। कुछ एजुकेशन किसी स्कूल में प्रॉपर एजुकेशन सिस्टम नहीं है और बच्चों को काफी डांटा जाता है, ज्यादा डिप्रेस किया जाता है, उस कारण भी आ जाती है। पुअर और इनएडुकेट इंस्ट्रक्शंस हैं, फैमिली सेटअप जो है वो भी सही नहीं है, लैक ऑफ मोटिवेशन है, स्किल नहीं है, टीचर्स में भी एबिलिटी नहीं है, इमोशनल डिस्टर्बेंस है, ठीक है, इम्प्रॉपर डेवलपमेंट है बच्चों की लैंग्वेज स्किल्स का लेकर, या फिर हम कह सकते हैं कि बच्चों की खुद की कंसंट्रेशन है, लैक ऑफ कंसंट्रेशन है, या अटेंशन नहीं दे पा रहे हैं, तो उस कारण भी प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है। देन यूज ऑफ ड्रग्स, अगर ड्रग्स हैं या कुछ भी ऐसे इंटॉक्सिकेटिंग सब्सटेंसेस लाइक अल्कोहल वगैरह यूज किया जा रहा है, तो उस कारण भी प्रॉब्लम आ जाती है। और बच्चे सोशली या कल्चरली डिप्राइव्ड हैं, तो इस कारण भी प्रॉब्लम्स देखी गई है। तो दीज आर ऑल द प्रॉब्लम्स। तो इन बच्चों को जो लर्निंग डिफिकल्टीज हैं जिन बच्चों में, उनको आइडेंटिफाई करने के लिए बहुत सारे टेस्ट भी बने हुए हैं, ठीक है। तो वन इज द नॉन टेस्टिंग डिवाइसेस, लाइक आप जस्ट ऑब्जर्वेशन करके पता चल सकता है, रेटिंग स्केल है, चेकलिस्ट, इंटरव्यू। और टेस्टिंग डिवाइसेस में कुछ स्टैंडर्डाइज्ड डायग्नोस्टिक टेस्ट्स हैं जो कि अवेलेबल होते हैं, लाइक डायग्नोस्टिक टेस्ट इन डेसिमल सिस्टम एंड परसेंटेज बाय वीपी शर्मा एंड शकूला। Then is Elenius test of psycholinguistic ability by Kirk, McCarthy and Keith. तो इस तरह से कुछ डायग्नोस्टिक टेस्ट ऑलरेडी बने हुए हैं। एंड कुछ अचीवमेंट टेस्ट भी हैं जो कि नॉर्मली पर्सन बना लेते हैं, एबिलिटी टेस्ट भी हैं। एबिलिटी टेस्ट में जैसे इल्नियस टेस्ट ऑफ साइकोलिंग्विस्टिक एबिलिटीज है। अचीवमेंट टेस्ट आ जाता है जैसे स्टैंडर्डाइज्ड अचीवमेंट टेस्ट एंड टीचर मेड टेस्ट, तो जो स्कूल्स में टेस्ट होते हैं उससे भी थोड़ा असेस किया जा सकता है। कुछ डेली असेसमेंट सिस्टम है जिसके आप जस्ट इंटरव्यू लेकर, ऑब्जर्व कर कर भी आप मेक आउट कर सकते हैं कि बच्चे में लर्निंग डिफिकल्टी है या सम लर्निंग डिसेबिलिटी इज। तो
Many of the educational provisions are there. अब बच्चों में लर्निंग डिसेबिलिटीज देखी जा रही है, तो उसके लिए एजुकेशन सिस्टम में काफी प्रोविजंस दे रखे हैं। तो प्रोविजंस हैं जैसे कि स्पेशलाइज्ड स्कूल्स हैं, स्पेशल स्कूल्स बनाए गए हैं, जैसे मेंटली रिटार्डेड स्कूल्स है, डेफ एंड डम स्कूल है, ब्लाइंड स्कूल है, या फिर जो भी लर्निंग डिसेबिलिटी के जो स्कूल हैं इनके लिए स्पेशल बनाए जाते हैं, क्योंकि ये हायर लेवल की जो डिफिकल्टी है तो वो नॉर्मल स्कूल्स में बच्चे एडजस्ट नहीं कर पाएंगे। लेकिन अगर नॉर्मल एवरेज लेवल की डिफिकल्टीज है तो उसके लिए नॉर्मल स्कूल्स में ही रेमेडियल प्रोग्राम्स दिए जाते हैं। ठीक है, तो उसी में स्पेशल क्लासेस दी जाती हैं, स्पेशल प्रोग्राम्स दिए जाते हैं। Then comes provision of special remedial and educational program जो कि नॉर्मल स्कूल्स में है, गाइड्स, SCRT, NCRT, ये सब काफी, ये जो एजेंसीज हैं काफी एजुकेशनल प्रोग्राम्स रन कर रही हैं। आजकल तो ऑनलाइन भी बहुत सारे प्रोग्राम्स हैं जिस जो कि बच्चे जो है उनके थ्रू हेल्प लेकर पढ़ सकते हैं। जो क्लास में कराया जा रहा है उसके साथ स्पेशल वीडियोस हैं, स्पेशल इंस्ट्रक्शंस हैं, इंस्ट्रक्शन मटेरियल बच्चों को भेजा जा रहा है ताकि उनकी अंडरस्टैंडिंग हो पाए। देन स्ट्रक्चरिंग एंड इम्प्रूविंग द एग्जिस्टिंग एनवायरमेंटल सेटअप। तो हमें जो प्रेजेंटली जो हमारा है सिस्टम, एजुकेशन सिस्टम है, तो उसमें स्ट्रक्चरिंग की बहुत जरूरत है। नॉर्मल स्कूल्स में ही अगर बच्चे जो जिनमें माइनर लेवल पे डिसेबिलिटी है अगर वो वही पे पढ़ते हैं तो वो जैसा एनवायरनमेंट होता है वो भी उसी तरह से ग्रैब करना शुरू कर। लेकिन अगर उनको बिल्कुल ही आइसोलेट कर देंगे तो वो ज्यादा डेवलप नहीं। तो नेक्स्ट कम्स स्लो लर्नर्स। तो ये भी कैटेगरी है लर्निंग डिसेबिलिटी की जिसमें बच्चे बहुत स्लोली चलते हैं। ठीक है, तो बच्चों का जो मेंटल लेवल होता है जो एवरेज लेवल पे होता है लेकिन थोड़ा सा बिलो होता है उनका IQ लेवल। The slow learner is not a diagnostic category. It is a term people use to describe a student who has the ability to learn necessary academic skills, but at rate and depth below average same age group peers. In order to grasp new concepts, a slow learner needs more time, more repetition, and often more resources from teachers to be successful. Reasoning skills are typically delayed, which makes new concepts difficult to learn. वही है, वो थोड़ा टाइम ज्यादा लेते हैं एज कम्पेयर टू अदर स्टूडेंट्स जो उनके सेम क्लास के ग्रुप के बच्चे होते हैं, तो उनको ज्यादा रिपीट करना पड़ता है, ज्यादा प्रैक्टिस करनी पड़ती है। तो स्लो लर्नर की डेफिनेशन है, किर्क ने दे रखी है, द टर्म स्लो लर्नर शुड बी रेफर टू द चिल्ड्रन ऑफ रिलेटिवली लो इंटेलिजेंस हैविंग एन IQ ऑफ अप्रोक्सीमेटली 75 to 90। तो उनका द टर्म बैकवर्ड भी कह सकते हैं, बैकवर्ड स्टूडेंट्स होते हैं ये, बैकवर्ड स्लो लर्नर इज रिजर्व्ड फॉर दोस चिल्ड्रन हु आर अनएबल टू कोप विद द वर्क नॉर्मली एक्सपेक्टेड फॉर of their age group. This definition is given by Burt in 1937. So characteristics क्या है स्लो लर्नर के? स्लो लर्नर्स ऑन अकाउंट ऑफ देयर subnormal intellectual capacities are found to exhibit the negative features like reduced ability to make abstraction and generalization. वो ज्यादा एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग उनमें डेवलप नहीं होती है, जनरलाइज भी नहीं कर पाते हैं। ओवर रीजनिंग एबिलिटी होती है, अंडरस्टैंडिंग एंड कॉम्प्रिहेंशन ज्यादा अच्छे से उनके अंडरस्टैंड नहीं कर पाते। लैक ऑफ कंसंट्रेशन इज देयर, लैक ऑफ क्यूरियोसिटी एंड क्रिएटिविटी इज देयर। तो ये कुछ डिफरेंसेस सॉरी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। तो इसमें जो ज्यादा ये देखा गया कि उनका IQ लेवल थोड़ा कम होता है। फिजिकली अपीयरेंस में वो भी नॉर्मल ही दिखते हैं, नॉर्मल बच्चों की तरह, लेकिन अंदर से मेंटली थोड़े से डिसेबल्ड होते हैं। और इसमें स्लो लर्नर में हमने देखा है कि बच्चों को लाइक मैथमेटिक्स में ज्यादा प्रॉब्लम आती है, जिसे हम डिसकैलकुलिया भी कहते हैं। इस कैलकुलेशंस वगैरह में अच्छे से वो नहीं कर पाते हैं। रेट ऑफ लर्निंग जो है वो भी स्लो होता है। एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग और वो जनरलाइज नहीं कर पाते, रीजनिंग पुअर होती है इनकी। मैथमेटिक्स में ओरली भी वो मैथमेटिक्स नहीं कर पाते हैं, लाइक टेबल्स वगैरह भी अच्छे से याद नहीं कर पाएंगे, या उनको ऐड करने के लिए कहा जाएगा वो नहीं कर पाएंगे। बेसिक कंसेप्ट्स को समझने के लिए भी उन्हें डिफिकल्टी होती है। लैंग्वेज और स्कूल का जो भी स्ट्रक्चर है, वो सारे सब्जेक्ट्स हैं वो अच्छे से रिटेन नहीं कर पाते। मल्टी स्टेप डायरेक्शंस वो फॉलो नहीं कर पाते, उन्हें डिफिकल्टी होती है कि एक ही टाइम में उन्हें 2-3 डायरेक्शंस दी जाए तो वो नहीं कर पाते। किसी भी स्किल्स को मास्टर करना हो तो उसे बहुत टाइम लगता है। ठीक है, और समटाइम्स
कोई भी स्किल ग्रैब नहीं भी कर पाते। स्कोर वो ज्यादातर जो अचीवमेंट टेस्ट होते हैं उनकी जो स्कोरिंग होती है वेरी पुअर होती है। यस। सो बाकी उनके जो डेली लाइफ में जितने भी फैक्ट्स प्रिंसिपल्स होते हैं उनको लर्न करने में उन्हें प्रॉब्लम होती है। जो भी वर्ड प्रॉब्लम्स होती हैं वो भी सॉल्व नहीं कर पाते मैथमेटिक्स में, या कोई भी सिस्टमेटिक स्टेप से करनी हो तो वो नहीं कर पाते हैं। उनके अंदर जो सेल्फ कंसेप्ट होता है वो भी लो होता है, और ज्यादातर उन्हें देखा गया वो फेलियर ही होता है, अचीवमेंट उनकी कम होती है। अपने बारे में वो बहुत ही लो ओपिनियन भी रखते हैं, और टीचर्स और पेरेंट्स बाकी सब लोग भी उनको थोड़ा लो ओपिनियन में ही लेते हैं। उनके जो डेवलपमेंटल माइलस्टोन्स होते हैं वो भी बहुत डिलेड होते हैं। स्किल्स लाइक लैंग्वेज और वोकैबुलरी, मैथमेटिकल कंप्यूटेशन, रीजनिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग, ये भी काफी स्लो होती है, लो होती है। तो बेसिकली काफी टेस्ट बने हुए हैं, आईक्यू टेस्ट होते हैं इनको डायग्नोस करने के लिए। एंड इनहेरिटेड प्रॉब्लम्स होती हैं। इनका बेसिक रीजन कुछ तो जेनेटिकली हो जाता है, कई बार सिवियर हेड इंजरीज होगी, मेनिंजाइटिस हो गया, मदर अल्कोहल या ड्रग यूज कर रही है, कोई इमोशनल डिस्टर्बेंसेस है, उस कारण भी ये देखा जाता है। इंटेलेक्चुअल एबिलिटी जो है बेसिकली बच्चे की जो से एज 7 ईयर्स से पहले हम नहीं देख पाते हैं, आइडेंटिफाई नहीं होता है, लेकिन जो 7 ईयर्स के बाद वी कैन आइडेंटिफाई दैट। उनमें लो मेंटल एबिलिटी होती है, लो पेस ऑफ लर्निंग है, अंडरस्टैंडिंग जो है वो भी लो है। बहुत ही टीचर्स को उनको काफी सिंपैथेटिक और अफेक्शनेट बनना पड़ता है उनके साथ डीलिंग करने के लिए। अगर वो शो करेंगे लैक ऑफ अंडरस्टैंडिंग और बहुत ही हार्श ट्रीटमेंट करेंगे तो वो और भी वर्स्ट हो जाती है कंडीशन। तो ये जो बच्चे होते हैं ज्यादातर फिजिकल, मेंटल, सोशल, इमोशनल हर लेवल पर इनकी पर्सनालिटी लो होती है। लैंग्वेज में भी प्रॉब्लम, इसमें हमने काफी देखा है डिसलेक्सिया, डिसकैल्कुलिया, ये टर्म्स हैं लोग हम और भी डिस्कस करेंगे। तो लो स्लो लर्नर के लिए ज्यादातर हम आईक्यू टेस्ट ही लगाते हैं, और फिजिकली और मेडिकली भी एग्जामिन कर सकते हैं। और एक अचीवमेंट टेस्ट होता है, अचीवमेंट क्वोशिएंट, दैट इज इक्वल टू अटेन्ड एज इन सब्जेक्ट लाइक मैथ डिवाइडेड बाय क्रोनोलॉजिकल एज इनटू 100। क्रोनोलॉजिकल एज आ जाता है आपकी जो बायोलॉजिकल एज है, ठीक है। तो आपने आपकी जो एज है उसके अकॉर्डिंगली आप मैथमेटिक्स किस लेवल पर है वो डिवाइडेड बाय जो आपकी एज है क्रोनोलॉजिकल इनटू 100, उससे आपका अचीवमेंट क्वोशिएंट आ जाता है। तो जनरली इनका अचीवमेंट क्वोशिएंट लो होता है। सो स्लो लर्नर इस तरह से थोड़े से कह सकते हैं स्लो है, पीछे हैं अपनी, लेकिन बिल्कुल मेंटली रिटार्डेड भी नहीं होगा। कि मेंटली रिटार्डेड जो बच्चे होते हैं वो बिल्कुल ही उनका आईक्यू लेवल बहुत ही लो होता है, उस लेवल पे नहीं है, वो थोड़ा ऊपर रेंज में आ जाते हैं, बट लर्निंग डिसेबिलिटी में आ जाते हैं। बेसिकली रीजन इनका स्लो लर्निंग का वही जीन्स हो सकता है, मदर का कोई अल्कोहल यूज करनी है, कोई हेड इंजरी है, कोई साइकोलॉजिकल फैक्टर है, घर का अनकंजीनियल होम इन्वायरमेंट है, इम्प्रॉपर बिहेवियर है टीचर्स का, तो ये सब है। इनके रेमेडियल मेजर्स जो हैं, रेमेडियल मेजर्स के लिए सबसे पहले हमारा प्रिवेंटिव मेजर है, प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। हमें चाहिए कि जो भी फैक्टर्स हैं इनहेरिटेड जो हो सकते हैं वो तो हम रोक नहीं सकते, जो जी जेनेटिकली पास ऑन होंगे। बाकी इन्वायरमेंट जो है वो अनकॉन्जीनियल नहीं होना चाहिए। जब भी डिलीवरी हो, बर्थ हो बच्चे का, तो कोई भी डिफेक्ट या इंजरी ना हो। अर्ली ईयर्स के जो डेवलपिंग पीरियड है उसमें ध्यान दिया जाए, बच्चे की ग्रोथ एंड डेवलपमेंट हो ब्रेन की और उसकी इंटेलेक्चुअल कैपेसिटीज की। पेरेंटल एजुकेशन जो है वो भी देनी चाहिए, ताकि वो कैसे घर के एनवायरनमेंट को कंजीनियल बना सके और बच्चे की ग्रोथ और डेवलपमेंट हो सके। एडुकेट ट्रेनिंग देनी चाहिए टीचर्स को भी। क्यूरेटिव मेजर्स आ जाते हैं कि अगर स्लो लर्नर है बच्चा तो हम इसे कैसे क्योर कर सकते हैं। So there are medical measures like न्यूरोलॉजिकली अगर कोई माल फंक्शनिंग है तो प्रॉपर में इल हेल्थ है या प्रॉपर अटेंशन दी जाए, ठीक है, प्रॉपर अरेंज किया जाए रेगुलर मेडिकल चेकअप के लिए। उनको कोई डाइट की प्रॉब्लम है तो डाइट, जहाँ भी प्रॉब्लम है तो बच्चों को देखा जाए। उनके बिहेवियरल मेजर्स किए जा सकते हैं जिसमें जो टीचर्स हैं, पेरेंट्स हैं,
वो बेसिकली स्लो लर्नर के साथ उनकी हेल्प करें, उनको आइडेंटिफाई करें, कुछ भी जो डिले माइलस्टोन्स हैं, जो फिजिकली मेंटली या एजुकेशनली वो स्लो है, उसमें वो हेल्प करें। केस हिस्ट्री देखे बच्चे की राइट फ्रॉम द बर्थ टिल द एंड, कैसे उनकी लाइफ आगे बढ़ रही है, काउंसलिंग की जाए बच्चों की, उनको गाइडेंस दी जाए, उनको बिहेवियर जो है, साइकोलॉजिस्ट हैं वो सारे उनकी हेल्प करें। तो वहां से हम आइडेंटिफाई कर उनको आगे हेल्प आउट कर सकते हैं। एजुकेशन मेजर्स में, एजुकेशन में सिस्टम बनाया जाए कि बच्चों की जो स्लो लर्नर, जिनकी पुअर कंसंट्रेशन है, उनको इस तरह से पढ़ाया जाए, ऑडियो विजुअल एड्स होता है कि उनकी कंसंट्रेशन स्ट्रांग हो। अटेंशन स्पैन उनका कम होता है स्लो लर्नर्स का, तो टीचर्स को डिफरेंट मेथड्स एंड स्ट्रेटजीज यूज करनी पड़ेंगी ताकि अटेंशन उनकी अट्रैक्ट कर सकें। वो अपनी पेस, अपनी स्पीड के हिसाब से पढ़ते हैं स्लो लर्नर, तो टीचर को थोड़ा सा उन्हें टाइम देना पड़ेगा, उनकी एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग को भी इंक्रीज करना पड़ेगा। और लेक्चर्स जो है बिल्कुल ओरल लेक्चर्स नहीं होने चाहिए, उनमें वैरायटी उनको डालनी पड़ेगी, और इंडिविजुअल अटेंशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। और एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है कि टीचर को अनड्यू एक्सपेक्टेशन नहीं रखनी चाहिए, टीचर्स को भी और पेरेंट्स को भी। बच्चे की कैपेबिलिटी को देखते हुए उसको ग्रो करना है, ताकि बच्चे के अंदर कॉन्फिडेंस आए और वो आगे बढ़ सके। आज की डेट में मॉडर्न टेक्नोलॉजी है, कंप्यूटर्स है, तो बहुत सारे आजकल ऑनलाइन प्रोग्राम्स हैं, बहुत सारे डिवाइसेस उनको असिस्ट कर सकते हैं, जिसमें वो उनकी अंडरस्टैंडिंग किसी भी कंसेप्ट को लेकर हो सकती है।